क्यों? Why? इसलिए नहीं कि हमें कुछ दिखाना है, हम Not कुछ because I wanted to show something. नहीं, क्योंकि जेन्युइनली परमेश्वर ने हमें आशीष बनाया और Because genuinely the Lord has made us a blessing. और इस बात को जान गए, इस सिद्धांत को जान गए हैं, जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. And because I know this principle, he who will stretch forth his hand to give will never have to stretch his hands for asking. हमें लगता है देखो हम कितने बुद्धिमान हैं. We think we are so wise. जैसे बिल आने वाला है, मेरा फोन आ. Oh, I'm just getting a call. कितनी बार भागोगे जब बिल आएगा? How many times will you run away when it's time to pay the bill? कितनी बार ऐसे इंसानी बुद्धिमानी दिखाओगे? How many times will you show this परमेश्वर की human wisdom? विजडम पालो. वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के. परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी. The wisdom of God says, he who gives, it will be poured into his bosom. Shakingly people will come and press down upon him and bless him, and he will lack nothing in his life. Amen. ये कुछ मर्द नहीं समझेंगे इसको यहाँ पे, पर बहनें समझेंगी. जब आटा उंडेला जाता है, जब आटा उंडेला जाता है उस कनस्तर में थोड़ी सी जगह और, परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा. थोड़ी जगह और है. This is how God is going to bless you. There's still some थोड़ी space जगह left. और है आशीष की. Still some space left. He will shake और and हिलाओ fill you. इसे और डालो आशीष. Pour down more जब तक ये blessing. उमड़ने ना लग जाए, Until he starts to आशीष overflow. डालते रहो इसके Keep जीवन pouring में, blessing. क्योंकि इसका हाथ खुला है औरों के Because लिए. his hand is open क्योंकि for ये others. मतलबी जीवन नहीं जीता, ये Because he औरों के लिए एक doesn't live a आशीष बनना selfish चाहता है. life. He wants to be a मैं blessing for इसको others. एक श्रोता I बनाऊंगा. will make him a fountain. मैं इसके जीवन के द्वारा कई और जातियों को आशीष दूंगा. I will bless many other nations through him. आमेन. हालेलुया. ये आपकी स्टोरी होगी यीशु के This नाम will में. be your story in Jesus' name. ये आपकी स्टोरी होगी. This will be your story. कुछ घरों में ना हर चीज का सोल्यूशन है चाय. पेट दर्द हो रहा है, चाय पी लो. गला खराब है, चाय पी लो. सब चीज चाय पी लो. In some houses they use tea as medication for everything, for headaches, stomach ache, whatever. कुछ बंदे जो ये करते हैं उनका साथ किस्सा. Yeah, some people who drink, for them. तबीयत खराब है, If you're not feeling well, खुशी है, happy, drink. गम है, Sad, drink. तो ऐसे ही परमेश्वर के पास भी एक ही चीज है. So even God has one thing. एक ही दवाई देता है आपको. He just gives you one medicine for everything. एक ही दवाई है जो परमेश्वर आपको देता है. God has just डिप्रेशन one है, medicine. मेरा वचन. Depression, take my बीमार word. हूँ, Sick, मेरा वचन. take my word. दुष्ट आत्मा है, Demonic मेरा spirit, वचन. take my word. जय में चलना है, What about मेरा victory? वचन. Take my word. जो भी चाहिए Whatever you परमेश्वर need. अपना वचन भेजता है. God sends His word for you. आमेन. परमेश्वर के पास और कोई दूसरी दवाई नहीं है. God has no second medicine to give you. वो एक ऐसा डॉक्टर है जो वही दवाई देता है. पुड़िया He is one. He is सर दर्द one such ये लो. doctor gives you the पेट same दर्द ये medicine. लो. Headache, stomach ache, whatever. डर लग रहा है, ये लो. Are you afraid? Take this medicine. क्यों? Why? क्योंकि वो जानता है उसके वचन में सब कुछ है. Because he knows everything is in His word. क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने अपने वचन के द्वारा करी है. Because He created this entire universe by His word. आपकी किडनी बनी उसके वचन से. Your kidney was आपकी formed out of आंखें His बनी word. उसके वचन Your से. eyes were formed out of आपका His word. लीवर बना उसके Your liver वचन was से. formed out of His word. आपका आपके नर्व्स नसें बनी उसके Your वचन nerves were से. formed from His word. सब कुछ उसने वचन के द्वारा बनाया. Everything came into being by His word. Amen. Can you put Psalm 107 verses 20? भजन 107 उसकी 20वीं आयत. Hallelujah. Amen. सीख रहे हैं आप कुछ? Learning some. He sent His word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया. कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did He heal them?
अपने वचन को भेजा। By sending His word. क्यों? Why? वही दवाई है। That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया, and delivered them from their destruction. He sent His word and healed them. और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा। ध्यान से सुनिए, if you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction. अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा। And when I read this, जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है, it is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है। यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है, और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है। So it says like this in the Hebrew language, He keeps on sending His word and keeps them healed, and He keeps on saving them from destructions. Amen. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का। आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स। There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right नहीं, now? आपको रेडियो चाहिए। No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी। When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is Word वो Himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन continuously. नहीं रहे। But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent His word. और हमें क्या किया? What did He do to us? चंगा किया। Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है, क्या चाहिए उन्हें? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है, क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है, क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है, क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं करी, क्या his चाहिए? kidney is not working. क्या चाहिए आपको? What do you need today? तो वचन चाहिए। The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है। And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का कारण। और जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है, जिसका मतलब है दवाई। And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है। If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves His word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में। In your heart and in your mouth. Amen? Amen. So word are containers. They contain spirit, they contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है। So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए। आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? Zion. You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है, But you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए हो। Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो। The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं। City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर। Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम। To an innumerable company of angels. जहां लाखों स्वर्गदूत हैं, वहां पर आए हो। If God opens your eyes, you will be amazed that how many angels are in this place. अगर परमेश्वर आपकी आत्मीय आंखें खोल दे, आप हैरान होंगे कितने स्वर्गदूत हैं यहाँ पे। एक एक तो आपके साथ ही आए। One each came with you at least.
अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो एक तो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है. If you are a born again believer, you have at least one personal angel with you. So 2500 लोग जो यहाँ पे हैं, 2500 स्वर्गदूत तो आप ही के साथ आए. Yeah, 2500 angels came just with you guys. उसके बाद और बहुत सारे आते हैं जब मीटिंग होती है. And many others come when there are meetings. और कुछ हैं जिनके साथ एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं. And there are some believers who don't have one but many angels. कुछ एलाइशा जैसे भी हैं जो अपने साथ एक आर्मी लेके चलते हैं एंजल्स Some are like Elisha who walk with an army of angels. Amen. हमें शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचना We है. have to come out of earthly thinking and think like a spiritual man. मैं आज आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ लाइफ में जॉयफुल रहने का. I'm going to tell you a secret to stay joyful in your life. और मैं आपको ये भी बताता हूँ जो लोग मिजरेबल होते हैं ना, जिनकी आप शक्ल उनकी देखेंगे ना, तो कैसे हमें वो नहीं होना है. And I'll tell you how not to be miserable in life. बहुत दुखी वो लोग कौन है पता है? Who are the people who are very, very जो बहुत miserable? सेल्फ सेंटर्ड है, Those who are self-centered, अपने बारे में सोचते रहते हैं. केवल अपने बारे में सोचते. They just keep thinking about themselves. अरे मैं तो 6 हफ्ते से आ रहा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया. Oh, I've been coming since 6 weeks. Lord did nothing for me. उसके लिए तो किया, Oh, for him the Lord did. मेरे लिए नहीं करा. Not for me. अरे तो खुश हो जाओ, उसके लिए करा. Oh, be happy for him. तुम्हारे लिए भी आ रहा है आंसर. For you the answer is coming. हमेशा आई एम टेलिंग यू द क्विकेस्ट वे टू बी मिजरेबल इज जस्ट लिव इन योर सेल्फ पिटी. मैं, मेरा, क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया, ये क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ. मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, कब होगा, क्यों नहीं कर रहा प्रभु, उसका तो हो गया, दोनों ने इंटरव्यू दिया, उसका हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं होता है, हमेशा मेरी नहीं सुनता है परमेश्वर, दूसरों की सुन लेता है. मैं, मेरा, मैं, कब होगा. The people who keep saying me, why doesn't the Lord hear me? The Lord hears him. Why doesn't God hear my prayer? He got selected for interview, I didn't get selected. Me. जो बहुत मैं करते हैं ना. Yeah, people who do a lot of meh. जानते हैं मैं कौन करता है? Do you know who does meh? हाँ, बकरी. Goats. यीशु ने कहा अंत में बकरियों को अलग कर दिया जाएगा. Jesus said in the end, goats will be separated. बकरी हल्ला मचाती है. मैं, The goats, मेरा, they keep making a मैं. noise. Me. मैं इस कलीसिया में गया, मुझसे तो कोई मिलने नहीं आया. मैं. I went to this church, nobody came to meet me. जितना मैं करोगे उतना दुख में रहोगे. Yeah, as much as you consider yourself, you'll stay in जिस a दिन miserable ये condition. सोच लोगे परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष बना दे, उस दिन देखो कैसा आनंद आपके जीवन से बहने लग जाएगा. The day you determine to be a blessing for someone else, see the kind of joy you will start enjoying in your मैं life. आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. I'm telling you a secret today. आपका पेट हमेशा खराब रहता है, Is your stomach always किसी की upset? बीमारी है, Is there any sickness? बोलो प्रभु मैं दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा. Say, Lord, I will pray for those who are sick. ये मत बोलो जब प्रभु पहले मेरे लिए करेगा, प्रभु ने मुझे तो करा नहीं, मेरे लिए तो करा नहीं. Oh, the Lord hasn't healed me first. He has to प्रभु heal ने me first. अब्राहम को बोला God told Abraham, राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर क्योंकि उसका बच्चा नहीं है. जब सारा बांझ थी, अब्राहम की बीवी बांझ थी, परमेश्वर ने कहा जा दूसरी बांझ के लिए प्रार्थना कर. और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी तो अबीमेलेक का बच्चा हो गया. कई बारी ये आपके जीवन में टेस्ट है. God told Abraham to go and pray for Abimelech's wife who was barren. Abraham went and prayed and she conceived. This is a test for many people. Come on. अब्राहम ने नहीं कहा अरे प्रभु Abraham मैं didn't prayer complain. करूं. He said, Lord, I should. मेरी बीवी का भी तो नहीं है Oh, बच्चा. even my wife doesn't have a child. उसने नहीं कहा. He didn't say that. उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना. He obeyed what the Lord said. आप खुद करके देखो. You tried yourself.
जब कलीसिया में आता है ये मत सोचो When you come to the church, don't think like this. मैंने पूछा ही नहीं किसी Oh, nobody considered me. Nobody looked at me. अरे तो तुम पूछ लो किसी और को Then you go and ask someone else, how are they doing? बोलो यीशु मुझे आशीष का एक श्रोता बना Say, Jesus, make me a channel of blessings. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो लोग मैं में जीते हैं, ये वचन तो बिल्कुल भी नहीं था जो मैंने बनाया था, पर This was not the word that I had for you, but आत्मा कलीसिया से आज भी कह रहा है. Spirit is still speaking to the churches. सो जो लोग मैं में जीते हैं The people who live in this self-centeredness, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, अपने अंदर कड़वाहट ले आते हैं They- और जब कड़वापन अपने अंदर आ जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह चोक हो जाता है. they get offended quickly and they become bitter inside. And when they become bitter inside, the grace of God gets choked from their life. Come on. Amen? मगर जिस दिन आपने सोच लिया The day you determine this, कि परमेश्वर मैं किसी और के लिए आशीष बनना चाहता Lord, I want to be a blessing for someone else. हूं, उस दिन आप देखो क्या होगा आपके जीवन में. See what will happen in your life. परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और जाति जातियों के लिए तुझे आशीष बनाऊंगा. God told Abraham, I will bless you and I'll make you a blessing for nations. और वही बुलाहट आज हमारी भी है. And that same calling is परमेश्वर ours. आपको जाति जातियों के लिए आशीष बनाना चाहता है. God wants to make you a blessing for nations. आप जानते हैं इससे पहले मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखा जब आखिरी 3,000 रुपए थे अकाउंट में. You know, when I saw the blessings of the Lord in my life, when I had the last 3,000 rupees left in my account, परमेश्वर ने मुझे एक बहन दिखाई एक मीटिंग में. God showed me a sister in a meeting. प्रभु ने कहा जा He said, 3,000 निकाल अपने अकाउंट से और उसको दे. Go and withdraw the 3,000 you have in your account and give it to her. मैंने कहा प्रभु said, 3,000 Lord, ही है अकाउंट में. I said, Lord, 3,000 is all I have in my कई account. बार हम प्रभु को ऐसे बताने की कोशिश करें उसे नहीं पता. अच्छा Sometimes you try to inform him as if he doesn't know. उसको पता है इसीलिए बोल रहे हैं 3,000. He knows, that's why he's saying, go take out 3,000. सो मैं मोनू के पास गया. मैंने कहा ये मेरे को प्रभु ने बोला है 3,000 रुपए एक बहन को देने के लिए. So Apostle Ankit went to Pastor Monica and said, the Lord has said, go and give 3,000 to that sister. उन्होंने कहा जो प्रभु कह रहा है She said, whatever the Lord is saying, हमें ओबे करना है प्रभु. we should obey what the Lord is saying. जल्दी से भाग के गया एटीएम में निकाला Quickly. 3,000 रुपए लिफाफे के अंदर डाला. उस बहन के पास गया बोला प्रभु ने मुझे बोला है आपको देने के लिए. Quickly ran to the ATM, withdrew the 3,000, put it in an envelope and gave it to her, saying, the Lord asked me to give it to you. कई बार लोग कह रहे प्रभु क्यों नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा. Sometimes people are saying, Lord, why aren't you giving to me? पहले परमेश्वर आपका पैसे का प्रेम तोड़ना चाहता है. First, the Lord wants to break your love for money. प्रभु नहीं चाहता कि हम एफडी बन जाएं जहां परमेश्वर डाले और 5 साल के लिए निकाल ना सके कुछ. The Lord doesn't want us to become FDs where He puts money and He cannot withdraw anything for the next 5 years. हमें आत्मिक एफडियां नहीं बनना है. We don't have to become spiritual FDs. यीशु ने कहा फ्रीली तुम्हें मिला है फ्रीली दो. Jesus said, freely you have received, freely give. जिनके हाथ जिनकी मुट्ठी खुली होती है. मैं Those- आपको एक बात बताता हूँ. Those with open fists, let me tell you something. इज इट ओके कैन आई फ्लो. सो जब हम लोग कलीसिया में जाते थे और हम लोग मैं यूथ ग्रुप में था तो वहां पे जब भी हम बाहर जाते थे चाय पीने खाना खाने मैगी खाने. When I was in the youth group in church, whenever we would go out to eat Maggie, chai, whatever, मेरी सैलरी 2,500 रुपए थी. my salary was 2,500. मैं बताया था म्यूजिक टीचर. I told you as a music teacher. 4 कॉर्ड आते थे. I knew 4 chords. सो जब भी मैगी लेते कुछ भी करते When तो people जब would बिल take देने का Maggie, टाइम आता When the time was to give, तो pay मैं the जल्दी bill, से अपना वॉलेट निकाल I के would quickly take out my wallet and हर बार देता. every time I would. तो give. मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो प्यार करता था. I had a friend who तो loved me. मुझे साइड लगे थे. He took me to the side one day. कह रहा, तू पागल है. He said, "Are you mad? हर बार देता है बाकी कोई नहीं देता. You give every time nobody else gives. तेरे को लोग बेवकूफ बना रहे हैं. People are just fooling you. कोई मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहा. Nobody was fooling me." I want to tell you that words are containers. मैं बताना चाहता हूँ वचन बर्तन है.
You have to understand, when you hear a word, जब आप एक वचन सुन रहे it's हो, not just noise, it's not just sound. केवल ध्वनि या आवाज नहीं है. Words वचन- can carry spirit in them. वचन अपने अंदर आत्मा लेकर चलते हैं. What did I say? मैंने क्या कहा? Words शब्दों में carry spirit in them. शब्द बर्तन की तरह आत्मा लेकर चलते हैं साथ में. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन दोनों हैं. So what is happening every Sunday when you're coming here and hearing the word? तो क्या हो रहा है हर संडे जब आप यहाँ पे आके वचन को सुन रहे हो? You're not just hearing a sermon, a sound, a nice preaching. आप सिर्फ आप एक अच्छा प्रचार नहीं सुन रहे हो. You are coming under the word where the Spirit of God and the life of God is released over your life. आप एक ऐसे वचन के अधीन आ रहे हो जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है, लदा हुआ है. What are witch doctors? जादू टोना वाले क्या कर रहे हैं? What are witch doctors doing? क्या कर रहे हैं जादू टोना वाले? What are the witch doctors doing? वो भी एक कमरे में बैठते हैं, They also sit in a room. वो भी शब्द भेजते हैं. They also send उन words. शब्दों के अंदर क्या है? What is in those words? स्पिरिट एंड डेथ. Spirit and जैसे परमेश्वर के वचन के आत्मा और अंदर मृत्यु. स्पिरिट और लाइफ है, उनके अंदर स्पिरिट और डेथ है. मगर कौन सी स्पिरिट है? डिमोनिक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है. Just as in the word of God there is spirit and life, in the words of witch doctors is spirit, but a demonic spirit and death. और जिन दुष्ट आत्माओं को भेज रहे हैं वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है. And कौन सी the- दुष्ट आत्मा है? बोलो टुच्ची. And the demons they are sending are low grade demons. सो वही मैं वापस कृष्णा की टेस्टमनी में आता हूं. अब वो 28 साल से एक दुष्ट आत्मा के अंदर था, मगर जब उसने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो उसके जीवन में क्या रिलीज होने लग गया? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का लाइफ. और जब परमेश्वर का आत्मा रिलीज हुआ तो ये टुच्ची दुष्ट आत्माएं भाग गई वहां से. I'll come back to Krishna's testimony. What happened after 28 years? He started to speak the word of God. When he spoke the word of God, the life and the spirit of God were released in his life. And when the spirit of God was released, every low grade demonic spirit ran away from his life.